نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أيدنا بروح القدس سورة بقرة آية نمبر 225. بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ترجمہ: لا نہیں یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ اللہ باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، یعنی کہ تمہارا امتحان لے گا، یا تمہارے مواخذے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اس چیز کو انکاؤنٹر کیا جائے گا، بیما بوجہ اس کے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، اللہ اللہ غفور حلیم بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے، حلم والا ہے۔ اچھا، لغو جو ہے نا، لغو اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا کلام جس کا کوئی فائدہ نہیں، یا ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی ایکٹیویٹی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ نا کہ باللغو فی ایمانکم، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ قسموں میں کوئی لغو اختیار کر لے، مطلب کہ کلام کی صورت سے منہ سے بے دہانی کوئی بات نکل جائے، ارادے کے بغیر بول دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا۔ جیسے کچھ لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے نا، قسم لے لو میں نے ایسے نہیں کیا، یا قسم میں نے ایسا نہیں کیا، مطلب کچھ کی تکیہ کا نام بن جاتا ہے۔ اس ہیبٹ کو چینج کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ ایک اس کی عادت ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کو قسم کے حوالے سے، مطلب اس کے منہ سے بے دھیانی سے جب نکلی ہے بات، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن جو وجہ اس کے کسبت قلوبہم کمایا اس کے دلوں نے، یعنی کسبہ کا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی، تو جو ارادے نیت کے ساتھ غلط قسم کھائی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ اس لیے انسان کو جو ہے نا برے گمان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ گمان بھی دل میں آتے ہیں، تو اس لیے جو دل میں آئے اس پر بھی پکڑ ہوگی، تو چھوٹی قسم کھاؤ گے جتنا جانتے ہوئے بھی، تو بھی تم پکڑ ہوگی۔ اس لیے ایک تو اپنے دلوں میں اپنے برے گمان نہیں پیدا کرنے چاہیے، دوسرا جھوٹی قسمیں جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کھانی چاہیے۔ اور قسم کی نا یہ نا سارا کانٹیکس قسم پہ چل رہا ہے۔ قسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک یمین، اور ایک دوسری ہوتی ہے لغو، تیسری ہوتی ہے پکی قسم۔ جب یمین غموس ہوتی ہے نا پہلی قسم، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ غموس اس لیے کیونکہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، غموس ڈبو دینا، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ قسم ہے آ، قسم کی لغو، یعنی کہ جو ہم لوگ تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتے ہیں، اور بعد میں اصل بات کا پتہ چلتا ہے کہ پھر اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ نہیں، لیکن جو مومن ہے وہ لغو باتوں سے
परहेज करता है। तो इस मोमिन को चाहिए, अगर उसके अंदर किसी के अंदर ये हैबिट है और वो मोमिन बनना चाहता है तो इसको ख़त्म करना है। तीसरी किस्म होती है पक्की कसम। पक्की कसम खाकर तोड़े फिर उसका कफारा है। एक तो है ना, शुरू में नहीं है था कि उसने तो गलत, जो पहली कसम है उसने जो जानबूझ से झूठी कसम खाई, लेकिन अभी थर्ड वन है कि उसने खाई तो पक्की कसम थी, मगर वो बाद में टूट गई, ये तोड़ना पड़ा। या जैसे वो किसी हक बात पे, जैसे पीछे हम लोगों ने आयत में पढ़ा था कि अगर तुम लोग किसी गलत नेकी काम पे कसम खा लो, ये ना ईमानी को अन तबर्रु व तत्तक़ू, नेकी के काम ऐसे कसम खा लो जो तुम्हारी नेकी तकवा या लोगों में इस्लाह के दरमियान रुकावट बनती हो, तो उस कसम को तोड़ना है। पहले बेशक उसने सच्ची से कसम खाई कि मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, या मैं इसकी कभी मदद नहीं करूंगा, या कभी मैं अल्लाह ताला से नाराज होकर कह देते कि हम कभी अल्लाह ताला की वो नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे कोई भी कसम को तोड़ना है, और फिर उसका कफारा भी अदा करना है। उस टाइम तो हम लोग को बिल्कुल जोश में आके गलत बात बोल देते हैं, लेकिन फिर उसका कफारा होगा। और कफारे में 10 मिस्कीन को खाना खिलाना होता है, या फिर कपड़े पहनाना होता है, या 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखना है, या फिर एक गुलाम आज़ाद करना होता है। अच्छा, ये थी कसम। मतलब अल्लाह ताला ने ना एक बात को बयान करने से पहले, उससे पहले ना बेसिक जो बुनियादी है ना इंसान की, वो मजबूत करते हैं। जैसे पीछे हैज़ के बारे में औरत का जिक्र हुआ कि क्या क्या उस पर फ़र्ज़ है, क्या वो उस पर अलाउ नहीं है, उसको कितना रिलीफ इस्लाम की तरफ से मिला हुआ है, और इंसानों को उसके साथ कैसा रवैया उस टाइम इख्तियार करना है। फिर उसके बाद आया कसम के हवाले से कि तुम लोग जो कसम खाते हो, ऑफकोर्स जब निकाह होता है वो भी एक कसम होती है, एक कमिटमेंट होती है कि आप उसकी कफालत करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, और उस ना नफ़का उसका पूरा करेंगे, और फिर ऐसे ही जो बीवी है वो भी अपने शौहर की अ, इमानत का ख्याल रखेगी, अपने घर की हिफाजत करेगी। तो ये सारी कमिटमेंट्स होती हैं, तो ये कसम, वादा, ये उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि जो तुम लोगों ने कस्में जानबूझकर खाई झूठी, तो उस पर तुम्हारी पकड़ है। अगर तो तुम्हारे लिए तकिया कलाम था तो वो उसको जो है वो अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे, लेकिन मोमिन अपने हैबिट्स को चेंज करता है। अब नेक्स्ट बात आ गई उन लोगों के लिए, लिल्लज़ीना लोगों के लिए, यू लूना, एला करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से, तरब्बुसु, इंतज़ार करना है, अरबाअतुन, 4 अशहुरिन, महीने। फ़ैन, फिर अगर वो रुजू कर लें, फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह अला, वो गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला है, बहुत मेहरबान है। अच्छा, लूना का मतलब ना, जो एला यानी कसम खाते हैं कि वो ताल्लुक नहीं रखेंगे, या एक तो होती है ना तलाक, बट यहाँ पर वो कसम खा रहे हैं कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। या फिर उसके साथ जो है वो किसी जो बॉन्डिंग थी, या कोई जो गिज़नान नफ़का होता है, या कुछ भी है, कुछ लेकिन बेसिकली यहाँ पर आता है अगर वो अपने रिलेशनशिप को कायम ना रखने से मुमानत, मतलब कसम खा ले कि मैं तुमसे नहीं कायम रखता, या तो उस पर जो है वो औरत क्या करेगी, उसका 4 माह इंतज़ार करेगी। अगर तो उसका शोहर रुजू कर ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो यह कि उसने कसम खा ली थी, वो एक तो कसम वाली कैटेगरी भी चली जाती है। तो तलाक की भी जो है ना फिर आगे से इकसाम होती हैं। अ, अच्छा, जो निकाह होता है उसका मतलब होता है कि एक गिरा जो बांध दी गई, और तलाक का मतलब होता है एक वो गिरा जो खोल दी गई, खोलना। और तलाक की किस्म होती है तलाक रजी, यानी उसमें जो होता है कि एक शोहर अपनी बीवी को तलाक दे, तो कहे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर उसकी कंडीशन यह है कि वो तोहर की हालत, मतलब कि वो हालत हैज़ में ना हो, वो तोहर की हालत में हो। फिर 3 माह की मुद्दत होती है कि उसमें जो शोहर के पास रजू करने का ऑप्शन होता है कि वो अपने अल्फाज वापस ले लेता है, और 3 माह के अंदर अंदर वो अगर वापस लौट जाता है तो फिर उसकी वो
एक तलाक काउंट होती है। मगर इसमें क्या है कि कंडीशंस आती हैं कि जो औरत है वो शौहर के घर पे रहे, और जो औरत है वो जीनत का एहतमाम करे। और हमारे आजकल दौर में ना सबसे ज़्यादा डाइवोर्स की रेशोज़ या फिर बेहयाई, जो बेवफाई है, उसका मोस्टली जो कंटेंट सामने आता है वो यही होता है कि घर में जो औरतें हैं वो इन्होंने खुद को इतना घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया है कि इवन वो अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। इवन को अगर किसी दिन लिपस्टिक लगा लें या बाल ठीक कर लें तो ये कमेंट सुनने को मिलता है कि आप कहीं जा रही हैं या कहीं जाना है, कोई आ रहा है। ये हमारे घर के आजकल के हालात हैं। ये मेरा मतलब खुद का सामना है, कभी सुनने में भी आता है कि बताते हैं अक्सर कि अच्छा मैं आज मैंने कल कंघी की या मैंने लिपस्टिक लगाई तो बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कहीं जा रही हैं, हस्बैंड पूछ रहे हैं कि कहीं से आ रहे हो कि कोई आया। तो व्हाट इज दिस यार, हमारा मेकअप, हमारी ब्यूटी, हमारा सजना संवरना बाहर के लोगों के लिए क्यों है? बेशक वो फीमेल्स के लिए हम, कि बेशक फीमेल गैदरिंग के लिए हम लोग तैयार होके जा रहे हैं, बट सबसे पहले जो तैयार होने का राइट है वो हमारे लाइफ पार्टनर, जो हमारे मेहरबान का शोहर का हक है। उनके सामने तैयार होना अ, आपको सवाब भी देता है। बाकियों औरत के सामने तैयार होकर जाने पे आपको सवाब नहीं है, ठीक है, गुनाह नहीं है उसमें क्योंकि वो औरत आपके सेम जेंडर है, बट उस पर सवाब ही नहीं आता। सफा साफ सुथरा होने का ईमान का हिस्सा है। मगर तैयार होना, अपने शोहर को खुश करना, तो ये आपको जो है वो नेकी पहुंच जाएगा। और अच्छा, उस जो तलाक रजीम में है ना कि वो 3 मंथ्स तक, जब तक उसके टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, तो तब तक कोई और शख्स भी उनको निकाह का पैगाम नहीं पहुंचा सकता। और अगर शोहर जो है वो रजू नहीं करता, 3 हैज भी ख़त्म हो जाए और तोहर की हालत आ गई है, तो इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी और वो आज़ाद हो गई है निकाह के लिए। और इस कंडीशन में इसकी ये एक तलाक काउंट होती है। लाइक ये ना तलाक ऐसी, रजी का मतलब ये जो तलाक ऐसी है कि इसका जो साबका शौहर है वो भी उससे निकाह कर सकता है 3 मंथ्स गुजरने के बाद भी। यहाँ पर कंडीशन है कि उसका शौहर उससे निकाह कर सकता है, मगर ये इसमें दोबारा से कागजी नहीं होता, मगर बोल कर दोबारा से करवाया जाता है इस कंडीशन में। अ, और जो है दूसरी मर्तबा अगर साहब का शौहर से फिर मतलब अगेन दोबारा कंडीशन ऐसी आई कि अगर उसने फिर से तलाक दी, सेकंड टाइम भी अपने साहब का शौहर से निकाह किया था उसने, और फिर उसने तलाक दी, और अच्छा ये 3 माह उसने गुजारे हैं ना, तो इसमें यह है कि वो रिपीटेडली कहे नहीं। ये भी आता है कंडीशन में कि अगर तो वो 1 माह बाद दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर 3 माह बाद दोबारा कहता है ना, फिर वो कहने से वो आपकी 3-3 माह बाद, 1-1 माह बाद जो उसने कहा है वो आपके 3 तलाकें फिर वो पूरी हो जाती होती हैं। लेकिन अगर वो 3 माह तक वो बस स्टॉप था, कुछ नहीं है कहा, सिर्फ एक दफा उसने तलाक का कह दिया हुआ है, इवन वो एक टाइम पे 3 दफा भी बोल दो वो एक ही काउंट होती है। 5 दफा बोले तो भी एक दफा वो गुनाह का जुम्मे में जरूर आ जाएगा कि उसने जो है वो अल्लाह ताला के दीन को मजाक बनाया। जब कहा गया है एक टाइम पर एक ही कहनी है तो उसने एक टाइम से ज़्यादा क्यों कही, तो वो उसका उस पे गुनाह आता है, बट काउंट एक ही होती है। अच्छा ये था कि पहली तलाक में 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, सेकंड उसने फिर दोबारा अपने सबका शोहर से 3 माह बाद दोबारा उससे निकाह किया, तो उसका ये दूसरा निकाह उसका उसके साथ काउंट होता है। फिर अगेन वही कंडीशन है कि उसने तलाक दी, और एक दफ़ा तलाक दी, 3 माह गुजर गए, फिर उसके पास 3 माह गुजरने के बाद फिर उसके पास ऑप्शन है अ, अपने शोहर से निकाह करने का। ये हो गया उसका थर्ड निकाह। एक वो जो उसका पहला निकाह हुआ था, फिर दूसरा निकाह था जब उसने पहली तलाक दी, फिर तीसरा निकाह था जब उसने दूसरी तलाक दी। अब ये तीसरी निकाह के बाद अगर वो तलाक दे देता है, फिर ये अपने साहब शौहर के पास नहीं जा पाती। फिर चाहे 1 माह गुजरे, चाहे 2 माह गुजरे, चाहे 3 माह गुजर जाए, वो तीसरी तलाक दूसरे निकाह के बाद, जो तीसरे तलाक है ना, तीसरे निकाह के बाद सॉरी, वो खत्म। हाँ ये कंडीशन हो सकती है
صرف حلالہ کی، اور جان بوجھ کر حلالہ کرنا یا کروانا گناہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت سخت لعنت ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے جو ڈرامہ ہیں انہوں نے اس قدر کانسیپٹ خراب کر دیا ہوا ہے کہ آہ، دین کی جو اصل روح ہے نا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ اپنا دین ڈراموں سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ اس میں بھی جب آف کورس ان کو رائٹرز جو بنانے والے ہیں وہ کوئی اگر اتھینٹک ہوتے، جن کو دین کا علم ہوتا، تو وہ ایسے ڈراماز بناتے ہی نا۔ خیر اگر بنا بھی رہے ہیں تو اس میں وہ بہت غلط جو ہے وہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے، ایون کہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں ڈراماز میں، تو یہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہمارا جو اسٹینڈرڈ بک ہے وہ ہماری قرآن ہے، وہ ہماری احادیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کے بہت اچھی نصیب کرے۔ تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی آپ کے کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ چیز کی سیویرٹی کیا ہے، اس میں کنڈیشنز میں وہ بچی کیا کرے گی۔ تو اچھا، اس میں تو یہ ہو گیا جو الہ کرتے ہیں، ایک تو وہ قسم کھا رہا ہے نا کہ میں نے نہیں تمہارے، ایک تو طلاق بھی دے سکتا ہے اور دوسری قسم بھی کھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ ختم کرتا ہوں، یہی کہہ دے، تو وہ بھی الہ میں آتا ہے۔ تو وہ اس کے جو ہے وہ 4 مہینے تک یہاں پر انتظار کر رہی ہے۔ وہیں اور اگر عزم وہ عزم کرے طلاق و طلاق کا فإنہ تو بے شک اللہ، اچھا یہاں پر ہے کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے طلاق تعلق نہیں رکھے گا تو بیوی اس کی جو ہے نا 4 ماہ تک انتظار کرتی ہے۔ یہ وہ کنڈیشن نہیں ہے طلاق والی، یہ کنڈیشن ڈفرینٹ ہے، جو 4 ماہ والی ہے نا۔ اس میں پھر وہ کیا کرتی ہے 4 ماہ کے انتظار کے بعد، حاکم وقت جو اس کا قاضی ہوتا ہے وہاں کا، تو وہ عدالت جا کے وہاں سے حاکم سے طلاق لے لے گی۔ بعض دفعہ جو ہے وہ بعض کے مطابق آتا ہے کہ حاکم کی ضرورت نہیں رہتی، خود ہی طلاق ہو جاتی ہے یہ 4 ماہ کے ٹائم پیریڈ میں۔ تو شوہر خواہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرے یا پھر طلاق دے، اگر 4 ماہ کے اندر اس نے رجوع کر لیا ہے کہ مطلب اس نے پہلے کہا تھا میں قسم کھاتا تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور 4 ماہ کے ڈیوریشن کے اندر ہی اس نے اگر تعلق رکھ دیا ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ یہاں پہ اس نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ کنڈیشن طلاق سے یہاں ڈفر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِن اور اگر عزم وہ عزم کر لے طلاق کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ زبانی طلاق دے تب بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور نیت کیا ہے انسان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سمیع علیم۔ تو عدت کی حکمت بھی یہی ہے کہ حمل واضح ہو جائے نا، تو اگر تو حمل واضح ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ جو طلاق ہے نا وہ کینسل ہو جاتی ہے، اور یا اس کی جو عدت ہوتی ہے نا پھر وہ تب ہو جاتی ہے جب تک بیبی آ نہیں جاتا، لائک اس کا اگر بے شک 1 مہینہ رہتا ہو، 4 دن رہتے ہوں، 5 مہینے رہتے ہوں، 9 مہینے پورے رہتے ہوں، اگر اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھرا تو اس کی تب تک ڈائیورس نہیں ہوگی جب تک عدت کمپلیٹ نہیں ہوتی، مطلب تب تک اس کے پاس، شوہر کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے پاس رجوع کر لے۔ اور یہ کنڈیشن اس لیے بھی ہے کہ حمل جو ہے وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حیض کا ٹائم پیریڈ ہو، اس کو واضح ہو جائے کہ وہ 3 طہر آ گئے ہیں اس کو، یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اسی خاوند سے اس کی اولاد ہے تو پھر بعد میں وراثت کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ پھر حلال حرام کے بھی رشتوں کا بھی فرق ہو جائے، بہت سی کنڈیشن اس میں آ جاتی ہیں کہ اس کے لیے آف کورس اگر پہلے خاوند سے اگر اولاد ہوگی اس کو نہیں پتہ چلا تو اس کے لیے سیکنڈ خاوند کے جو رشتہ دار ہوں گے اس کی اولاد کے لیے وہ نامحرم ہوں گے۔ اچھا اس میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غصے میں ہو تو نہیں ہوتی، یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر کہ سمیع اور علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ تم نے جو بولا اور جو تمہارے اندر دل کی کیفیت تھی، جو ایک دفعہ بول دیا گیا، ایک دفعہ عزم ہو گیا تو وہ ہو جاتی ہے طلاق۔
अब यहाँ पर जो जिस्मानी लिहाज में ताकतवर होते हैं मर्द को, जो अल्लाह ताला ने दर्जा दिया हुआ है, वो किस लिहाज से, कि वो जिस्मानी लिहाज में वो ताकतवर होते हैं। सेकंड, वो हक महर अदा करते हैं। तीसरा, नानुफका की जिम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो तलाक का हक है ना, वो भी मर्द के पास दिया है। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला अजीज है, वो ताकतवर है मर्द पर। इसलिए मर्द औरत पर ताकतवर होने की वजह से ज्यादती ना करें। कि जब एक इंसान को पता है ना कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है जो मुझे पूछेगा, और एक औरत को भी सहारा है कि एक ज़ात वो भी है अल्लाह ताला की, जो उस पर की गई ज्यादती का पूछेगा, और कोई उस पर बेजा ज्यादती नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है चीज़। मगर एक को फौकी देना, एक दर्जा बुलंद करना इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी को तो घर की जिम्मेदारी उठानी है ना। सो हिकमत अल्लाह ताला जानता है औरत का एक दर्जा कम क्यों रखा गया। सिर्फ खानदानी घरेलू ज़िंदगी में एक दर्जा कम है, शोहर की जो है वो ताबे है। लेकिन इल्म और नेकी में दोनों बराबर हैं। बाहर कमाने जाना खुद पर जुल्म है, और एक औरत के लिए खिलाफ फितरत ज़रूर है, क्योंकि उसके लिए असल देखभाल उसके बच्चों के लिए, मतलब उसने अपने बच्चों का देखभाल करना है। अ, अगर अल्लाह ताला जो है उंगलियां बराबर कर देते हैं हमारे हाथों की भी, तो काम वैसा ना होता जैसे अभी हो रहा है। तो जो अल्लाह ताला ने बोझ नहीं डाला हुआ, वो उठाना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। और ऐसा ही है आजकल, अगर औरत बाहर के काम करती है तो उसके साथ उसको घर का भी करना पड़ता है, फिर वो डबल डबल काम हो जाती है। और बच्चे नैनीस के पास हैं, उनकी तरबियत करने वाला वो नहीं रही जिसने अपनी तालीम इसलिए सीखी थी कि वो उसका घर, उसकी औलाद उस तरह से परवरिश पाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में औलाद है उसकी। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो घर के कामों में खुद को इतना मशरूफ कर देती है कि उनकी औलाद निगलेक्ट होती है। तो औलाद की परवरिश सबसे पहले है आप, क्योंकि वो अगली नस्ल, वक्त का अगली नस्ल के जो है वो एक लीडर्स होंगे। अगर उनकी बेस ही अच्छी नहीं होगी, उनको निगलेक्ट किया जाएगा, तो वो किस तरह से नेक्स्ट लीडर्स बन सकते हैं, वो किस तरह से एक अच्छी कौम बन सकते हैं। तो इसलिए अपने प्रायोरिटीज़ को एक लिस्ट करना है खुद पे। जो हम लोगों ने मुआशरे में अलग एक्स्ट्रा खुद पे बर्डन्स डाले हुए हैं, उसको अगर तो संभाल सकते हैं तो ये आप पर है। अगर नहीं तो ये अल्लाह ताला ने आप पर बोझ भी नहीं डाला हुआ। इनफैक्ट अल्लाह ताला ने एक औरत को जो है वो कमज़ोर बनाया हुआ है। हाँ, ये औरत के अंदर है चीज़ कि वो मल्टीटास्किंग है, कि घर में रहते हुए अपनी कुकिंग भी करेगी, घर संभालती है, और साथ अपने बच्चों की परवरिश हर लिहाज से करती है। हर बच्चा, अगर उसके 3 4 5 बच्चे हैं ना, तो बच्चे कभी भी एक मजाज के नहीं होते। हर बच्चे का अपना मजाज होगा। उस बच्चे को उसके मजाज के अकॉर्डिंग उसको डील करना, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ औरत को ही हुनर दिया है। अगर इस पे मर्द आ जाएं तो मर्द कभी भी सोशल मीडिया में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं सामने कि एक जो मर्द है वो या तो कुकिंग कर लेगा या फिर बच्चों को संभालेगा, मगर एक औरत एक वक्त में बच्चों के साथ भी डील कर रही होती है और कुकिंग भी कर रही होती है। इवन वो साथ साथ ऑफिस वर्क भी कर रही होती है। तो ये मल्टीटास्किंग अल्लाह ताला ने औरत को दी ज़रूर है, मगर फिर वो बहुत जल्दी खुद को थका देती है, थक जाती है। इसमें इसके ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि एक वेस्टर्न ने औरत को इंडिपेंडेंट होने का मतलब कहा है कि तू इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम लो। एक लिहाज से अच्छा, मगर दूसरे लिहाज से ये आपकी फैमिली को कंप्रोमाइज करता है। हम्म, मैं क्या कहना चाह रही थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। ओह माय गॉड, अभी मेरे माइंड में बहुत मजे का पॉइंट आया था, मेरे माइंड से अभी भी इना लीला हो गया, इना लिया। हम्म, औरत के काम की बात हो रही थी, वेस्टर्न। और हाँ, अब याद आ गया। मगर हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि औरत के काम को इतना वो इन्फीरियर समझा जाता है घर के कामों को।
बाहर की बात नहीं करी, ये घर के कामों को इतना इन्फीरियर समझा जाता है कि उसको बोदर नहीं किया जाता कि वो भी कोई काम है। इनफैक्ट अगर मर्द बाहर से कमा के आ रहा है तो उसको इस कदर बोल्ड कर दिया जाता है, इवन कि अल्लाह ताला ने हर जेंडर पे उसके काम के मुताबिक उस पर बोझ डाला है। अगर मर्द बाहर से कमा के आके जितना थकता है ना, औरत भी उतना ही थकती है घर के काम और बच्चों को संभाल कर। और अल्लाह ताला फिर भी जो शोहर है वो क्या कहते हैं, उनको रेस्ट भी मिलती, मतलब एक अगर उनका छुट्टी का दिन भी होता है मगर औरत के लिए कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। ये है फिर एहसास की कमी यहाँ पर आ जाती है। और इसको हमारे सोसाइटी में बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस चीज़ को, कि औरत ने तो घर का काम करना ही करना है, वो तो मशीन है उसने करना है, मगर मर्द बाहर से थका हुआ है, उसको पानी भी दो, उसको खाना भी खुद पेश करो। बट एक वुमेन को कुछ भी प्लेट में सर्व करके नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर कोई हस्बैंड उसको ऐसा करके देता है ना, तो उसके हस्बैंड को बहुत अच्छा एक एलियन समझा जाता है। इसलिए हमारे सोसाइटी में इसको नॉर्मल नहीं किया गया कि अगर एक को ज़रूरत है तो दूसरे ने उसको कंपनसेट करना है। इनफैक्ट उसको बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा तो मर्द तो करते नहीं, अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना, बहुत तुम्हारा शौहर इतना अच्छा है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक औरत आपके लिए अच्छा काम कर रही है, वैसे एक मर्द भी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। वी आर द मदर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हमें अपने बच्चों की तरबियत में ऐसा रखना है कि जो मर्द है बेटा है वो भी अपनी बीवी की हुई मेहनत घर पर वो जो भी कर रही है उसको अप्रिशिएट करे, और उसको भी रिलैक्स कर दे, रिलैक्सिंग टाइम दे, या जो वो चाहती है उसके अकॉर्डिंग उसको भी चीज़ दी जाए और उसको कुछ समझा जाए, rather than दिस कि तुम घर बैठी हो तो तुम्हें अक्ल नहीं है। तो हर मामले में हर एक की समझ बूझ, हर मामला फैमिली सबकी डिफरेंट होती है। तो किसी को ये कहना कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। तो ये बच्चों की तरबियत हमने करनी है कि किसी को भी किसी भी लिहाज से इंफीरियर नहीं समझना। और सेकेंड थिंग इज, औरत की भी इसी तरीके से, वो तो हमारे माशरे में ऑलरेडी फीड है, बट अब बहुत से लोग इस चीज़ में इतने एक्सट्रीम निकल गए हैं कि औरत को इस चीज़ समझाते ही नहीं। बट औरत को भी यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मर्द उसके लिए करके आ रहा है, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर हिम। वो भी आप पे एहसान कर रहा है, और जो मर्द करेगा और जो बीवी कर रही है वो भी एक शौहर पे एहसान हो रही कर रही है। और अल्लाह ताला वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। आज का लेसन काफ़ी लंबा हो गया। बट यहाँ पे है कि हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी खराबी हो चुकी हुई है कि एक दूसरे के मामलात को हम लोग या तो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, मोस्टली वेस्टर्न थॉट्स की वजह से। उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आई हैव द अथॉरिटी टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट इस मामले में भी क्लियर होना चाहिए। मैं तिलावत चलाती हूँ, तर्जमे को रिकॉल करना है आयत नंबर 225 से। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ये मैंने कहाँ से लगा दिया? आ रही है आवाज? आवाज़ तो आ रही है, वो मुझे लगता है बहुत पीछे से चला गया। एक सेकेंड, टाइम इसका ख़राब हो गया। للذين يؤلون من نسائهم الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب بہنوں کو بہت اچھے لائف پارٹنرز دیں، جن کی ہم بھی قدر کریں، ان کی محنت کو ایڈمائر کریں، ان کے اپریشیٹ کریں اور اپنے حقوق کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے پارٹنرز دیں جو ہماری ایفرٹس کو بھی ایڈمائر کریں، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانیں، اور ہمیں اس دین پر استقامت دینا ہے کہ ہم جو ہے اگلی جو اولاد ہے اس کی پرورش بھی ایسے ہی کریں جس طرح سے اس کرنے کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔